بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شارٹ نوٹس پہ یہ پریس کانفرنس رکھی اور چھٹی والا دن تھا، آپ سب ادھر آ گئے۔ کم از کم ہم اپنا پراپر موقف دے سکے۔ بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکے تاکہ کلیئر ہو۔ یونیورسٹی کے اندر جو ایک انریسٹ ہے، تقریباً ایک ہفتے سے اسٹوڈنٹ چیخ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کو ہم بیان کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن بھی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر ایک مضبوط توانا آواز ہے، جس میں پروفیسر سے لے کر آپ کے لیکچررز تک سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، باقاعدہ بائی الیکشن یہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے ایک آفیسرز ایسوسی ایشن بھی ہے نان ٹیچنگ سٹاف کی، اس طرح ہمارے لوور سٹاف کی ایسوسی ایشن، یہ ہم سب کی نمائندگی ادھر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ سارے پروفیسرز بھی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہ سب اس لیے آئے ہیں، یہ پریس کانفرنس بھی صاحب اکیلے بھی کر سکتا تھا، یا میں ایز اے ترجمان میں بھی کر سکتا تھا۔ یہاں باہر ایک جنرل لوگوں کے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیجن یونیورسٹی میں بھی لیے گئے ہیں فیس بڑھانے میں، یا اسٹوڈنٹ کی ڈسپلنری ایکشنز میں، یا دیگر جو بھی، یہ کوئی مین شو ہے یا کوئی کسی انڈیویجول کا فیصلہ ہے، اس میں ہم سب آن بورڈ ہیں۔ ہم سب ان ڈیسیجنز میں باقاعدہ موجود تھے، سب کی رائے شامل ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اس کے بعد یہ فیصلے لیے گئے۔ تو سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے تو مجھے میرے ساتھی بھی ہیں، کچھ کلاس فیلو بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا نام ہے میر تعظیم اختر، میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہوں، اور اس یونیورسٹی کا فرسٹ امپلائی بھی میں ہوں۔ جب یہ یونیورسٹی بنی تھی، سب سے پہلے آرڈر میرا ہوا تھا جب فاؤنڈر وائس چانسلر آئے تھے، کیونکہ مجھ سے زیادہ شاید ادھر نہیں جانتا ہو اس یونیورسٹی کا، میں شروع دن سے میں واقف ہوں۔ میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، یہ سینئر ترین ڈین بھی ہیں یونیورسٹی کے، اور ایکٹنگ وائس چانسلر بھی رہے ہیں، اور یہ بھی میرے ساتھ کالج کے دور سے ادھر پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل میرا نام ہے، اور میں کمپیوٹر سائنس کا فیکلٹی ممبر ہوں۔ ایز اے لیکچرر 2006 سے کیو کو سرو کر رہا ہوں، اور ایز اے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن اپوزیشن لیڈر میرا رول۔ ڈاکٹر مجیب میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سرو کر رہا ہوں 2003 سے۔ ڈاکٹر فاروق سچی ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، ڈائریکٹر ایڈوانس اسٹڈیز ہوں، اور جنرل سیکرٹری اکیڈمک اسٹاف 2007 سے میں یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق، میں ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہوں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سجاد علی، ڈائریکٹر اکیڈمکس کے ایئر میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں کیمسٹری۔ ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس۔ اس طرح ہمارے بہت سارے کلیگ نیچے ادھر جگہ نہیں تھی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، ڈپٹی چیف پروکٹرز ہیں، ہمارے ڈائریکٹر انکوبیشن سینٹر ہے، ایڈیشنل رجسٹرار ہے، اور ٹریجرر ہے، ڈائریکٹر اورک ہے پروفیسر اسماعیل صاحب، یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آئیں گے، کیونکہ جو برننگ ایشو ہے یہ فی کیوں بڑھایا گیا، فیس کا ایشو ہے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹ، جو ہمارے بچے ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں، ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی، پورے گلگت کو، انتظامیہ کو بھی۔ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلے جو ہے، پچھلے 3 سالوں سے ایچ ای سی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کو، یا میں نے ان کی فنڈنگ پالیسی بھی میں لے کر آیا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ سکتے، پرنٹ لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں ریفر آپ کو ویب سائٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن ادھر میں لے کر وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے جو فنڈنگ ہے وہ مطلب وہی ہی مل رہی ہے، کوئی انکریز ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے، منسٹری آف فائنانس، مثلاً سپوز 65 ارب روپے سالانہ ریکرنگ گرانٹ دیتی، وہی جاری ہے۔ تو اب آگے پھر وہ بھی نہیں بڑھا سکتے، وہ پاس آن کرتے ہیں وہی رقم۔ سپوز ہمیں 500 ملین مل رہے تھے، تو وہی ملتے آ رہے ہیں ابھی تک، اس میں کوئی انکریز نہیں۔ جبکہ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں گے تو مسلسل 3 سالوں سے سیلری انکریز ہو رہی، بس اس سے پہلے بھی ایک تو آپ کا سالانہ انکریمنٹ لگتا ہے دسمبر میں، وہ تو نیشنل پے اسکیل میں تمام امپلائیز کا
तमाम गवर्नमेंट के इदारों में, वो आप सबको पता है वो है। इसके अलावा सैलरी इंक्रीज करते हैं, कभी 15%, कभी 25%, कभी 35%, इससे पहले एक दफ़ा 50% भी हुआ। लेकिन उसके अगेंस्ट हमें बजट नहीं देते हैं, ना HEC देता है, हायर एजुकेशन कमीशन। वो उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं अपनी जी भी अपने लोकल गवर्नमेंट से बात करें। एक तो ये मेन इशू है। इसके अलावा हमारा जो एक्ट है 2008, उसके अंदर ये प्रोविजन थी, पहले 2002 वाला था, अभी अमेंड होकर 2008 बन गया। उसमें ये थी GB के अंदर जितने तालीमी इदारे हैं उनकी एफिलिएशन थी हमारी कराक्रम यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें लिखा गया था मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी एग्जामिनेशन है ये एज ए एग्जामिनिंग बॉडी करेगी, तमाम इम्तहानात यूनिवर्सिटी कर। तो हम ये करते आ रहे थे पिछले कोई हाफिज साहब के दौर में, आपको पता है कि ये एकदम से हमसे पूछे बगैर, या तो कोई रीज़न हो ना कि ये आप में कमी कोताही है, आप इनको रेक्टिफाई करें, न करने की सूरत में विद इन 6 मंथ हम इसको शिफ्ट करेंगे। कुछ भी नहीं पूछा गया। एक दिन ऑर्डर आया जी, हमने आपसे ख़त्म करके फेडरल बोर्ड ले गए। अब उसकी वजह से हमें कोई 12 करोड़ सालाना का नुकसान है, 12 करोड़ 120 मिलियन का। एक ये उस वक्त भी हम गवर्नमेंट के पास गए, हम सब सारे मिलकर, सेक्रेटरी एजुकेशन, चीफ सेक्रेटरी, जो अभी फेडरल सेक्रेटरी है, पिछले दफ़ा आया भी था, ये तारड़ साफी चीफ सेक्रेटरी थे, वो तो हमसे खैर उन दिनों में मिला भी नहीं, बड़ी कोशिश की, CM साहब से मिले। तो हमने कहा चले आपने ये शिफ्ट किया, उसके अल्टरनेट हमें कोई बजट तो दे दें, क्योंकि जो रकम आ रही थी वो हमारे बजट में रिफ्लेक्ट हो रही थी, बाकायदा रिकरिंग ग्रांट में इतना रेवेन्यू में हम डालते थे। तो अब वो डेफिसिट इसी तरह रह गया, वो हमें किसी ने दिया। फर्स्ट उसमें एक दफ़ा हाफिज साहब ने तकरीबन 5 करोड़ का ऐलान करके 3 करोड़ दिया उसमें बात में। तो इसके अलावा कोई पैसे इसके अगेंस्ट कुछ भी हमें आज तक नहीं मिले हैं। एक ये हो गया, और ये गया फेडरल बोर्ड में, एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। फिर इसके अलावा मैंने जो पता जा रहा है, इसके अलावा आजकल महंगाई का आपको पता है, हर 15 दिन 30 रुपए, कभी 25 रुपए, कभी 15, पेट्रोल डीजल का आप सबको पता है, वो तो हर एक ने पे करना है। उसके खिलाफ पेट्रोल की जब इंक्रीज हर 15 दिन होती है, ना कोई आवाम, यहाँ तो मैंने अभी नहीं देखा, उधर रेस्ट ऑफ द कंट्री में है, ना हमारे स्टूडेंट बोलते हैं, ना कोई, बस हम जो ही होता है हम वो तेल डालकर निकल जाते हैं, पर लीटर इजाफा होता, उसका इम्पेक्ट पड़ गया, जिसकी महंगाई आप सबको पता है कितना है। तो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए स्टेशनरी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, डीजल और कई और चीज़ें होती हैं, उनको लैब्स का सामान है, ये सब महंगाई इतनी बढ़ गई, वो सब आपको पता है। इसके अलावा हमारे पास फिर ये जो सब कैंपसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पॉलिसी बनी थी कि पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में एक एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि हायर एजुकेशन की एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। उस मैंडेट के अंदर रहते हुए यहाँ एक बल्तिस्तान में अलग इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन गई, फिर हमारे 3 कैंपसेस बन गए, आप सबको पता है। उस 3 कैंपसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बाकायदा हमें डेवलपमेंट ग्रांट दी गई, उसको इस्टेब्लिश किया, फैकल्टी को हायर किया। अब उनका जब वो दौरानिया कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया, वो कहते हैं रिकरिंग ग्रांट हम आपको नहीं दे देंगे, आप अपने रिसोर्सेज से इनको चलाएं। अब अपने रिसोर्सेज, मुझे ये समझ में आज तक अपने हम कहाँ से लाएंगे, हमें तो फंडिंग एजेंसी HEC है, वो आगे से ये कह रहे, दूसरा GB गवर्नमेंट, तीसरा हमारी स्टूडेंट की फीसें। अब फीस कुछ बढ़ाया तो आप लोगों के सामने है हंगामे कितने। अब ये कैंपसेस में, चिलास में तो स्टूडेंट भी कम है, चिलास में हमने क्या किया है, बेमन को ज़रा अलग करके भी रखा है, वहाँ माहौल ऐसा है इकट्ठा किया फिर झगड़ा बढ़ जाता है, तो उनको ज़रा सेपरेट रखा है, एक और बिल्डिंग में अलग वो क्लासें हैं, तो वहाँ स्टूडेंट थोड़े से कम भी हैं। फिर दिगर कैंपसेस का यही है, तो वो कहते हैं ये उनसे ही पूरा करो, स्टूडेंट से फीसें इतनी ले लो, वो कैंपस चले। तो उनसे तो हम इतने ले नहीं सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ाया तो फिर आपके पास झगड़ा इतना बढ़ रहा है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा एक और कंपोनेंट है रेवेन्यू जनरेशन, हमारा जो एग्जामिनेशन का कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। उसकी वजह है हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसियाँ। आपको पता है एक ज़माने में B.Ed 1 ईयर प्रोग्राम होता था,
हर साल B.Ed 1 ईयर के प्राइवेट एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। यहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट बहुत सारे वो एक साल के इम्तहान के लिए हमारे पास, ये तो मसला सारे यूनिवर्सिटियों का, पूरे मुल्क के, तो वो एग्ज़ाम के लिए आते थे, उससे अच्छा खासा हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको फेज आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया पॉलिसी। अब ख़त्म करने से पहले उनको सोचना चाहिए उसके अगेंस्ट कोई कंपनसेट करें यूनिवर्सिटियों को, कोई बजट इजाफा करके करें। अब सपोज हम 1 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को इससे अर्निंग होती थी, हमें वो करोड़ मिले नहीं, ये प्रोग्राम बंद हो गया, अब उस खसारे को कौन पूरा करेगा? आज तक किसी ने भी नहीं सोचा है। इसके अलावा BA और BSc का 2 ईयर वाला प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटियाँ इम्तहानात कंडक्ट करते थे, उससे ठीक ठाक अर्निंग होती थी, वो HEC ने फेज आउट किया। मास्टर का प्रोग्राम 2 साल प्रोग्राम, आप सब में से वो प्राइवेट अपियर भी हुए होंगे, उससे अच्छी खासी यूनिवर्सिटियों की, पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों की अर्निंग होती, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म करने की वजह से सारा बोझ यूनिवर्सिटियों पे पड़ा, अर्निंग का कम हो गई। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर यूनिवर्सिटियाँ बन गई पूरे पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटियाँ बनाने की वजह से, अब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी एक ज़माने में यहाँ गिलगित तक एफिलिएशन देते थे, उससे इतनी उनकी अर्निंग होती थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ तकरीबन लाहौर तक महदूद हो गई। अब उसका जो बजट डेफिसिट हो गया वो कौन पूरा करेगा? उसके अगेंस्ट उन्होंने मुलाजमीन लिए हैं, लैब्स उनके पास है, तो फिर ले देकर आखिरकार हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, जो कि गवर्नमेंट भी यही कहती है, फीसें बढ़ाओ। अब हम फिर GB में इस हिसाब से फीसें बढ़ा भी नहीं सकते हैं। अब हमारी जो फीसें हैं इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान से सबसे कम फीसें हैं। मैं यहाँ प्रिंट लेकर आया हूँ फीस स्ट्रक्चर तमाम यूनिवर्सिटियों के। इस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी सॉफ्टवेयर का एक वो शुरू किया, 1,75,000 से स्टार्ट लिया पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वो जब एक ज़माना था उस वक्त उनके 25,000 थी, अब वो बढ़ाकर, वो भी वजूहात ये हैं, यूनिवर्सिटियाँ बढ़ गई, कैंपसेस बढ़ गए, रेवेन्यू जनरेशन ख़त्म हो गई, तो सर्वाइवल की जंग तो लड़नी है ना। ये गवर्नमेंट इजाफी कंपनसेशन नहीं दे रही, तो मजबूरन वो भी यही कर रहे हैं। अब हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हमने अभी भी 53,000 है। अब ये 53,000 एडमिशन के साथ ले लेंगे, बाद में वो कम होकर वो कोई 48,000 पे आएगी, अब भी सबसे कम है। आपकी इस्लामाबाद में नस्ट है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, प्राइम मिनिस्टर चांसलर है उसका, जिस तरह हम हैं पब्लिक सेक्टर, इस तरह 2.5 लाख से वो स्टार्ट है उनकी फीस, 2.5 लाख से। अच्छा, आपकी एयर यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर है, जिस तरह HEC हमें फंडिंग करता है, इसी तरह उनको वो फंडिंग पॉलिसी के साथ मैंने जो बजट HEC देता है तमाम यूनिवर्सिटी, वो कागज़ भी लेकर आया हूँ। आप में से कोई भाई देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। इसी तरह आपकी बहरिया यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी लाहौर है, FC कॉलेज लाहौर है, कराची यूनिवर्सिटी का मैं लेकर आया हूँ, उनका अभी 54,000, बाज़ प्रोग्रामों का 54 है, बाज़ का 70, सबसे कम उनकी थी, ठीक है कि नहीं। अब सोबू में क्या किया है सर, ये सब तो फी कंपेरिजन है, मेरे पास है सबसे कम इस वक्त हमारे पास है, वो पूरा कैलकुलेशन करके फिगर्स लेकर आए हैं। 5,000 का इम्पैक्ट, वो कोई है तकरीबन 70% के करीब स्टूडेंट पे 5,000 पर सेमेस्टर इम्पैक्ट पड़ा है, ये बढ़ने की वजह से। इस तरह जो आपके कंप्यूटर साइंस जहाँ लैब्स इन्वॉल्व हैं, कंप्यूटर लैब, आपके माइनिंग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, उधर क्योंकि फील्ड ट्रिप्स भी होती हैं स्टूडेंट की, लैब इक्विपमेंट, लैब के केमिकल्स से लेकर सारे इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें कोई 8,000 का इम्पैक्ट पड़ा है। पढ़कर भी कोई भी प्रोग्राम का 60 से ऊपर अभी भी नहीं है, 30% पे ये 8,000 का इम्पैक्ट। समझते हैं कि ये एरिया गरीब है, मालदार लोग तो है नहीं, सैलरीड पर्सन हैं, ये भी हमने दिल पे, ये हमारे बच्चे हैं, दिल पे पत्थर रख कर ये जो मुमकिन, इसके बावजूद 300 से 400 के करीब इस वक्त यूनिवर्सिटी खसारे में है। फिर भी ये बढ़ाने के बावजूद, चेक कर रहा था, सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2nd क्वार्टर का रिलीज किया है अपने यूनिवर्सिटियों के लिए, 2nd क्वार्टर की हायर इसको कराची यूनिवर्सिटी को 500 मिलियन सिर्फ 1 क्वार्टर का दिया। 4 क्वार्टर होते हैं, इसका मतलब है 2 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट कराची यूनिवर्सिटी को पे करता है। इसके बावजूद उनकी 54,000, 70,000, 80,000, 89,000 है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, 2nd वाला क्वार्टरली रिलीज देते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्होंने कोई तकरीबन 20 अरब रुपए रखा है अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए।
HEC के फंडिंग के अलावा वो दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए सालाना के उसके गवाह होंगे कई। ये जब बजट इजलास था, आप लोगों का भी बल्कि एक इशू था, आप लोग भी आए थे, हम एक एक के दर पे गए हैं। हमारा ये था, ये इंक्रीज करने से पहले ये हम कर सकते। इस हिसाब कोई भी, इवन हमारे पास बाज एम्बेसडर्स आते हैं, उनको भी हम पकड़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी को पैसे दे दें स्कॉलरशिप की मत में, कुछ ने भी दिया भी। अभी चाइनीज एम्बेसडर ने भी साहब ने जब मीटिंग की तो उन्होंने ये कुछ पैसे दे दिए, अभी हम वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से दे रहे हैं।